future of the country, and you people, we have a lot of expectations from young generation like you people, because definitely you people are going to be a great part of this society, and society definitely is with the collective action of we all people. I cannot say that you can clap with one hand, because unless or until it's a two-way process. And this my seminar is again a two-way interaction with you people. I don't want you people to be dumb here. I want that in the last 5 to 7 minutes, if any of your queries are there, we will love to have you people here. See, our core is, we are talking right now is about the 12th post, what you are going to be. Other than medical and engineering, because of course, most of the people will be preparing for IITs, NEET exam. But yes, there are few who think beyond that. There are definitely few who think beyond. Because earlier was a time when I myself have studied from Kendriya Vidyalaya. In 98 I passed out. And in 1998 there was an entry called as technical entry. It's similar to like an NDA. At that time the percentage criteria was 70% in physics, chemistry, maths. I got somewhere around 82 point some percent. But easy going, we people can get the call letters. But I come to know about that entry in 2005. God my those magic years of life. The point is the awareness, the point is the guidance. We may have money today, but if we don't have the right direction where to use the resources, I personally feel so we are at loss. So, anyone among you who been right now sitting here, if you are in 10th standard or 11th or in 12th standard, with any of the streams, sciences, arts, even commerce, there are lot much things to do. The first thing I am going to tell everyone here, if you are a guys who are studying in 12th standard, and for me, believe me, for me percent is never a criteria. For the last 20 years I have seen people with 47% marks came to me कि हम क्लर्क लग जाएंगे बैंक में. क्लर्क का एक भी पेपर पास नहीं हुआ. 47% with a guy cracked PO. He's scale 4 officer right now in Canara Bank in Jalandhar. So this is a very simple example. Now as far as 12th post concerned, there is one entry for 12th people with 50% marks individually in physics, individually in mathematics, individually in English. You must have heard about IGRUA. IGRUA is the only national academy of the government of India. It is an autonomous body under Ministry of Civil Aviation. It is called as Indira Gandhi Rashtriya Udyan Academy, Raebareli. If you really think to become a pilot, other than defense forces, right now I have not taken up NDA and CDS in my within your interaction. IGRUA is one of the finest academy, a national academy under government of India, which imparts 24 months of coaching, training to you people to become a wonderful pilot. Generally people go out of India for doing this commercial pilot training, but once you've been doing it from Philippines, Florida, Australia, a number of countries are imparting, because in America to become a pilot is an easy thing. But Government of India does not allow you to become a pilot, to fly aircrafts in India, unless or until you don't have a conversion license in India. Because the main nodal body under Government of India is called as Directorate General of Civil Aviation. That gives you a license of being a pilot. So it's better if you've been doing it from IGRUA. It got 125 seats. It got 50 seats in open merit, and it is pan-India. So, believe me, 140 crore population, how many students? The 12th aspiring students will want to become a pilot. So, competition definitely be tough. So, if you are in 11th and 12th, like suppose ma'am said, so the 11th candidates are not here. If you are in 12th, and you think they are 50% तो आएंगे, and I think so, अब तो 80%, 90% हमारे टाइम पे 80% तो टॉपर, आपके टाइम पे तो 99 पे कट ऑफ खत्म हो जाता है, 98 पे कट ऑफ खत्म हो जाता है. But believe me, 50% is the eligibility criteria for IGRUA, and उस 50% पे आप पायलट बन सकते हैं, और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस आपको उठा लेगी एज अ पायलट. Yes, fee structure is 45 lakhs, but don't worry. If I am giving you this thing, I am giving you a solution also.
हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं आप सब हम लोग. 45 लाख इज द फी स्ट्रक्चर. बट IITs और IIMs में फीस भी तो इतना ही है, 18-20 लाख तो है ही है. बट अगर आप इग्रुवा के अंदर घुसते हैं, अंदर सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स बैठे, उनको पता है कि 24 महीने के बाद इस कैंडिडेट को टाटा एयरलाइंस उठाएगी, सिंगापुर एयरलाइंस उठाएगी, 3-3.5 लाख सैलरी पर मंथ, नॉट ईयरली. अगर 40 लाख का पैकेज वो कंपनी आपको तब दे रही है, तो वही बैंक आपको बोलते हैं बिकम अ पायलट, वी गिव यू 100% लोन. और स्टूडेंट लोन, एजुकेशन लोन इज दिस ओनली. नो कोलैटरल, आपसे कुछ नहीं लिया जाता है. द प्रिंसिपल अमाउंट और द इंटरेस्ट इज बीइंग पेड once the course is complete. और जब आप इग्रुवा से पास आउट होंगे, it is like an IIT. जब आप इग्रुवा से पास आउट होंगे, तो एयरलाइंस are embrace their arms open for you people. So this is one of the finest entries. Yes, इसके एग्जाम में you have aptitude test, reasoning test, you have general knowledge, and general knowledge I mean to say general knowledge plus GS. And when I say GS, it is a vast thing. History, geography, political science, current affairs, likewise your NDA proportion. And one test that is very important here is psychometric test. If anyone among you has been aspiring to become an army officer, so post NDA written you are going for SSB. And if you people know about NDA, the SSB of the NDA, it is a 2-stage process. The second stage, once you passed out, there is the second stage called the psychology testing. Same psychology testing here is like psychometric testing in IGRUA. They check your mind, ये vivid mind तो नहीं है, fluctuating तो नहीं है, क्योंकि जब हम आपको 1600 करोड़ का या 800 करोड़ का जहाज देते हैं उड़ाने के लिए, तो हम आपको प्लेन के अंदर ये टेंशन नहीं देना चाहते मम्मा ने सुबह डांट दिया या पापा ने चांटा मार दिया. हम आपको 1600 करोड़ का रफाल दें और आप जहाज में बैठने में ये टेंशन ले लो कि आज तो सुबह सुबह डांट पिट गई, तो प्लेन तो गया, एक पायलट भी गया और रिसोर्स भी गया. रफाल इज 1600 करोड़ रुपीस ईच प्लेन, सो कोई इज 800 करोड़ रुपीस प्लेन. और ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई एम लाउडर. ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज आई एम हैविंग माय स्टूडेंट्स हु बीन फ्लाइंग फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स. सो समवेयर अराउंड IGRUA is one of the better options if you think to be. Yes, sciences people are required to be a pilot in IGRUA. Of course, commerce and arts people cannot become a pilot of IGRUA because physics, mathematics is compulsory here. And individually, maths, physics and English we need to get 50% above. Chemistry में 48 marks आएंगे चलेगा, I don't mind. बिकॉज प्लेन में सारा एरोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है. सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर माय एस्पायरिंग यंग लैड और फॉल्क्स, आई मस्ट से. एंड सेकेंड ऑप्शन डेफिनेटली इज इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, if you aspires to be, if you think to be that yes we want to go for CA or CS or integrated MBA, I must say plan hard, think for IIM integrated MBA. In India the prestigious IIMs are IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Kozhikode, IIM Calcutta, now we have IIM Kashipur also and IIM Jammu also, IIM Bodh Gaya also. One of our very close friends, he's from Jammu only, he's right now associate professor with IIM Ahmedabad. So he keeps on taking my workshops from in Ahmedabad for my students also. So this year, last year rather, there was an integrated course initiated by 2 IIMs in India called this IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. It is an integrated course in which they will offer you BBA plus MBA. It is a 5-year integrated course. Generally, today the time has changed now. The many universities, many institutions are coming up with the integrated courses. So when you've been getting a degree of IIM Ahmedabad or like was any of the IIMs, definitely in the market, when the corporate world comes, they offer you good packages. They offer you good salaries also. Doing an MBA from a normal institutions whose rating is not good, I expect you that you get 3 to 4 lakh rupees package per annum. But
Delhi and getting 4 lakh plus package, where you have to give the rent also, where you have to eat some food also, I personally feel so 4 lakh is not much an amount. So it's better if someone is really thinking to go for an integrated MBA, and that too if you get a degree from the IIM Ahmedabad or IIM Jammu or IIM Bodh Gaya. Again, this particular course is being offered by the two IIMs in India, IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. 80 seats are there all over India for these two institutions. Competition is again there. Aptitude will come, reasoning is come, current affairs is come, English will come, and post afterwards, group discussion and personality test. Personality test is where there is a PI, there is an interaction, that is PI, it is personal interview or personal interaction. I don't know that you people here in this school premises been doing GD or not. Sorry to say, but for the last 20 years, this is the ritual in my institute every day. Even I am present or I am absent. 2:15 or 2:30, my 15 to 20 students are been doing it on regular basis. Few topics are being assigned by me earlier. Now they have created a good confidence among themselves. So they've been doing it every day. How this is going to affect is, this will enhance your communication skills. This will push your PR also. Because every child, you are shy or not shy, because when you go to the market, when you are going to face an interview, you have to speak. So we want you to be an outspoken, we want you to be an outward personality. And believe me, today, it's not about that you are introvert, हमने कभी बोला नहीं, हम shy हैं, हमें डर लगता है. It hardly matters यार. इस वॉल के अंदर 10 लोग आपस में हंसेंगे ना, चलेगा, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, बट इस वॉल के बाहर अगर आप पे कोई हंसेगा, द क्वेश्चन मार्क इज ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग. सो मेक इट एज अ रेगुलर हैबिट. आज से कोरोना से एक साल पहले शायद मैंने यहाँ सेमिनार किया था, तब भी मैंने ये बात बोली थी और आज मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ. मेक इट एज अ हैबिट. स्कूल के अंदर एक ग्रुप बनाओ, जैसे आपके साइंस ग्रुप्स रहते हैं, कॉमर्स ग्रुप, मेक अ जीडी ग्रुप. मैं आपको आज लिख के देता हूं, यू पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी एनीथिंग इन योर लाइफ, 10 महीने के बाद जनवरी में मेरे साथ बात कर लेना. अगर आप रेगुलर जीडी कर रहे हो स्कूल के अंदर, हफ्ते में 3 दिन बनाओ, 2 दिन बनाओ, मेक इट एज अ रेगुलर हैबिट. जिस तरह से आपके हाउसेज है, मेक एट अ ग्रुप लाइक दैट फॉर एनी स्टूडेंट फ्रॉम 9, 10, 11, 12 बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. उस ग्रुप का नाम रखो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप, और उसका डिफरेंस देख के देख लेना, मैं आपको बताऊंगा. और मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरी तरफ से वो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन होगा आपके लिए शुरू में, आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, अगर आप इस ग्रुप को बनाते हैं. मैं आपको डेमो दूंगा अपनी टीम को यहां पर लाके. इट्स नॉट अबाउट कि हम सोचते क्या है. सोच किसी की भी बहुत ऊंची हो सकती है. सोच को पाने के लिए यू हैव टू पुश योरसेल्फ. जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता. बिलीव मी, ये जरूरी नहीं है कि आप सब लोग 11, 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पीछे भाग रहे हो. लाइफ इज नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. आप सब लोग आईआईटी और इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे थे ना. मेरे जब यहाँ आने पर, आपकी मैम के बोलने पर, मैंने अभी तक आपको आईआईटी और इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बोला? और ये 2 चीजें जो मैंने अभी तक बोली, आपने सुनी थी पहले? नहीं सुनी थी ना. तो फिर आप लोगों का फोन यूज करने का क्या फायदा है? आप सब लोग टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हो. पाम टॉप पाम नहीं होगा ना, एक सिंगल वो हर चीज का गूगल, हर चीज का आंसर गूगल नहीं है ना. और अगर हर चीज का आंसर गूगल होता तो गूगल पे भी बहुत सारी मीम्स बनती हैं अलग अलग से. इट्स नॉट अबाउट, इट्स ऑल अबाउट द गाइडेंस, इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस. दिशा बहुत मैटर करती है दोस्तों. आप डाउन द लाइन 10 इयर्स के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो, वो बहुत मैटर करता है. हमारे पास 18 इयर्स में बच्चे आते हैं, कुछ हर साल कुछ ऐसे लोग आते हैं, और 21 इयर्स में वो फाइटर पायलट बनते हैं या बैंक पीओ बनते हैं. तो उनके सो कॉल्ड जहां से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके रिलेटिव्स उनको कहते हैं किसको पैसे दिए थे सिलेक्शन के लिए. बिकॉज लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज होती है कि यार
यार पता नहीं 21 साल की उम्र में कैसे सेलेक्ट हो गया, फाइटर पायलट बन गया। बट उसके पीछे आपका 3 साल का वो हार्डवर्क होता है जो सिर्फ 3 लोग जज करते हैं, देखते हैं। आपकी फैकल्टी जो आपको ट्रेन कर रही है, आपके पेरेंट जो मदर सुबह उठ के किचन में है, और आप लोग। और ये हार्डवर्क आपका उन्हीं 3 लोगों को देखना जरूरी है। बाकी लेट द वर्ल्ड लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज एंड सी देम once you are into somewhere, once you are reach your destination. And now coming to your defense part, if anyone aspiring to be into defense forces, you might have heard about India. Everyone? Everyone. Anyone from the commerce background, sciences background, arts background can go to NDA. But the point again is, for the commerce people and the arts people who don't have mathematics, they might have problems, they might have land up in a problem. Because mathematics does come in UPSC of 11th and 12th. Earlier, trigonometry is around about 18 questions or 16 questions comes up in the paper. This year, the 16th of April, the paper went fine. There was only 7 questions of trigonometry, and the 16 to 17 question came up of sequence and series. NDA के अंदर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप ब्रिलियंट से ब्रिलियंट भी ये नहीं करोगे। ऑफ कोर्स मैथ कैलकुलेटिव होता है, लेकिन अगर आप 70 क्वेश्चंस, देखिए यहां सारा खेल है स्मार्ट वर्क का। अगर आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और वो 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सटीक हैं, आपने सही अटेम्प्ट किए, तो आप सेफ जोन में आ गए, मैथ्स क्वालिफाई हो गया, मैथ्स चेक हो गया, पास हो गया, फिर जीएस चेक होगा। जीएस 150 क्वेश्चंस। हमें लगता है अंग्रेजी आती है, हम टॉपर्स हैं अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी डुबो देती है कभी कभी। 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन ऑफ जीएस। जीएस इज वास्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल स्कीम्स। मैं आपको लिख के देता हूं, एनडीए का 16 अप्रैल का पेपर और सीडीएस का पेपर उठा के देख लो, यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, upsc.gov.in, you'll find the previous year paper. आप इन पेपर्स को देखो। आज की डेट में कन्वेंशनल पॉलिटी, कन्वेंशनल हिस्ट्री, कन्वेंशनल ज्योग्राफी नहीं आती। कन्वेंशनल मतलब जो किताबों में लिखी है। आज की डेट में आपका जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स वैसा है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो अराउंड दी वर्ल्ड चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की, 1600 रुपया उसमें लेडीज को देते थे। आज बताओ कौन सी कैटेगरी की लेडीज इसमें आती है? स्कीम है, लेकिन स्कीम में जो चेंज आ गया वो पेपर का पार्ट बन गया। जितनी दुनिया में डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, सब आती थी पहले, अब आता है कि ये कंट्री ये डिफेंस एक्सरसाइज होस्ट कर रही है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट। ये बताओ इंडिया ने कौन कौन से जहाज इसमें भेजे हैं? तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है। अपडेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। इट्स नॉट अबाउट कि आप बोलो कि मैं किताबों से रट्टा मार लें, किताबें पढ़ लें, एग्जाम पास हो जाएगा। पास होता है, लेकिन आपको अगर आप एनडीए के लिए सोच रहे हैं तो 5-10% अगर आपके 12th में कम भी हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कोई मैटर नहीं करता। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरे 20 साल का 21वें साल हो गया मेरे को काम करते, 21st ईयर रनिंग है। मेरा 20 इयर्स का अनुभव ये कहता है। आर्मी स्कूल दमाना में एक स्टूडेंट है अभिषेक सिंह पठानिया, ये हमारा MI-17 चलाता है, ऑटो पायलट ट्रांसपोर्ट, ये हेलीकॉप्टर है। जहाज के बीच में बैठ के कॉफी पी सकते हो आराम से, ऑटो पायलट पे डाल दो। उसका टॉपर था, 12th में परसेंटेज 80 हो गया, लेकिन मेरे यहां से रिकमेंड हो गया, एनडीए में चला गया, पाइन ट्री गिरा, यहां ही गॉट अ होल आउट ऑफ एनडीए मेडिकल ग्राउंड्स। दोबारा कोशिश किया, इतना मीन टाइम मैंने उसका मेडिकल एक डिसेबिलिटी बन जाता है उसमें 41% का, पैक चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया। बट फौज में धड़कता था ना दिल, तो सीडीएस दे दिया, सीडीएस क्वालिफाई हो गया, आईएमए में पहुंच गया, आईएमए के अंदर मेडिकल हुआ, पता चल गया तो ये होल एनडीए में, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ आईएमए ऑल्सो। फौज में अभी भी दिल धड़कता था, एफकेट दे दिया, एफकेट फ्लाइंग क्वालिफाई हो गया, एयरफोर्स में आ गया, ये होल चलेगा वहां, हो गया मैनेज। ही वेंट इनटू एयरफोर्स, नाउ ही इज राइट नाउ स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर बनने वाले आजकल। तो ये हो गया
आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लाइफ में जितने मर्जी अप्स डाउन्स प्लस माइनसेस आ जाएं, आप ऐसे खड़े रहिए। और याद रखिएगा, अप्स एंड डाउन आने जरूरी है। आप सब लोग फिजिक्स के लोग हैं ना, मेडिकल बायो से हैं, माइट भी। वो आपका ईसीजी जो होता है ना, वो ऐसे चलेगा तो सही हो ना, अगर सीधा हो गया तो क्या हो गया? कोलैप्स। तो लाइफ अप्स एंड डाउन्स है, वो ऐसे ही जाना चाहिए। तो एनडीए के अंदर अगर आप 90 क्वेश्चन जीएस के कर दो और 70 क्वेश्चन कर दो मैथमेटिक्स के, मार्क माई वर्ड, अगर आपको एनडीए की कॉल नहीं आई, आप मुझे पकड़ लेना। देख लो, 150 क्वेश्चन 90 करने हैं, लेकिन 90 बिल्कुल सही। तो 90 into 4 360 कितना होता है? यही होता है। ये होता है। आपको मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मेरा थोड़ा वीक है। और वहां आपने 70 क्वेश्चन कर दिए तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। नाउ यू विल गेट द कॉल लेटर ऑफ एसएसबी। यू गॉट द विंग्स, फ्लाई नाउ। बट एनडीए के साथ साथ, और एनडीए में साल में 2 एंट्री है, इसके साथ साथ देयर इज 1 एंट्री कॉल्ड एज टेक्निकल एंट्री स्कीम एंड 1 एंट्री इज बीटेक एंट्री नेवी। आर्मी और नेवी ये एंट्री करवाती है, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एसएसबी जैसे एनडीए का एसएसबी होता है। इसमें जो लोग who wants to aspire to become an want to aspire for engineering, they are eligible for, and eligibility is 70% PCM. Believe me, पहले 70% पे कॉल लेटर आ जाती थी, अब नहीं आती है। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें चेंज ले आया है। आपको आपका जो आईआईटी जेई होता है ना, आईआईटी जेई जो आपका पहले मेंस होता है, एडवांस होता है, मेंस होता है, उसको क्वालिफाई करना, पास नहीं करना, वो जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग होता है वो क्वालिफाई करेंगे, प्लस परसेंटेज बेस यू विल गेट द कॉल लेटर। ये भी साल में 2 बार, नेवी टेक्निकल भी साल में 2 बार, 2 बार एनडीए। कितनी एंट्री होगी? 6। 16.5 से 19 साल 1 एज ऑन ज्वाइनिंग द एकेडमी, और 16 साल से 19 साल 1 एज ऑन ज्वाइनिंग द एकेडमी। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। टेक्निकल आर्मी में आपने आईआईटी जेई दे दिया, क्वालिफाई कर दिया, और परसेंटेज सामने अराउंड 81 82 में कॉल लेटर आ जाएगी। साल में 2 बार निकलते हैं, दूसरी बार थोड़ा परसेंटेज कम भी हो जाता है, 79 80 में भी कॉल आ जाती है। डायरेक्ट एसएसपी, आइदर यू गेट कॉल लेटर फ्रॉम भोपाल और बैंगलोर और इलाहाबाद, अभी तो कपूरथला में भी बन गया, सामने अराउंड जलंधर के पास। रिकमेंड होंगे, 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग करोगे ओटीए गया से, बिहार में। उसके बाद आपको 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री। आप बोलोगे 5 साल, अरे भैया तीसरे साल के बाद आपको स्टार्स लग जाएंगे। फिर इसके बाद जो लोग एस्पायर कर रहे हैं मैकेनिकल के लिए, वो सिकंदराबाद चले जाएंगे, जो सिविल के लिए कर रहे हैं वो मऊ चले जाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल के लिए चल रहे हैं वो पूना चले जाएंगे। ये सब जो इंस्टीट्यूट है जहां से ये इंजीनियरिंग करवाई जाती है, वो सब आर्मी मेंटेन्ड इंस्टीट्यूट है, नो प्राइवेट वन इज अलाउड फॉर दैट। 3 इयर्स के बाद, क्योंकि 4 साल के बाद तो स्टार लगने हैं ना, तो 1 ईयर बेसिक ट्रेनिंग, 3 इयर्स वो आपका स्टार्स लग गया, यू आर इन यूनिफॉर्म। अब आप 1 साल you will become the son-in-law of force, and now with uniform now you will study, you will get the salary of an officer, and now last 1 year you will complete your engineering। क्योंकि फर्स्ट ईयर जो बेसिक ट्रेनिंग है, that is only a basic training of physical test, ये सब। अगले 4 साल आपकी इंजीनियरिंग है, 3 साल के बाद आपको पास आउट कर रहे हैं, मतलब 1 year plus 3 years, 4 years हो गए, you are now an army officer। Now the last 5th year will be and your engineering completion। दिस इज टेक्निकल आर्मी एंट्री। फिर 2 साल उसके बाद पास आउट होने के बाद 2 साल किसी भी इन्फेंट्री यूनिट के साथ रहेंगे, उसके बाद अपनी अपनी इंजीनियरिंग लाइन में ईएमई सिग्नल्स में कहीं पर भी पोस्टेड रहेंगे आप लोग। जो बीटेक नेवी है, दैट इज अगेन अ वंडरफुल एंट्री। मेरे 21 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली बीटेक टेक्निकल नेवी में हैं। एक मेरा स्टूडेंट है बॉम्बे